WhatsApp chat. Right. One of you asked me about note making and summarizing. I said that it's a problem solving session, so I'll be discussing whatever comes to head. Note making and summarizing has been a very, very crucial one of the chapter. Is there in your syllabus, note making and summarizing? Is note making there in your syllabus? If you say yes, then I'll discuss that. It is, sir. Yes, So it is. note making is there. Yes, sir, And it is. yeah, it is one of the problematic questions. I'll do that. I'll take that. I'll take care of that. So what I'm doing is that I'm sharing a doc with you, and I'll tell you the steps of how you will make notes and how you will summarize. I'll share the screen again. Because I had been a teacher, so whatever topic you speak, I have things ready with me here or there. I always keep the documents with me everywhere. So I can immediately look for the document and share with you in no time. So let me share my, yeah, is there on the screen? Prepare notes. Can you see that? Say yes or no, one of you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir, we Yes. are able to see. राइट सो एक चीज तो बताना पहले ये बताना है कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग देयर आर टू थिंग्स कॉल्ड नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग दे बोथ आर नॉट सेम जनरली उसको ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं नोट टेकिंग मोस्टली क्लासेस में होते हैं जब क्लास में आप कुछ लेक्चर दे रहे हैं या कोई लीडर वगैरह बोल रहा है या कहीं आप कहीं से कुछ सुन रहे हैं सो फॉर नोट टेकिंग द मेन प्राइमरी सोर्स इज लिसनिंग टेक्स्ट आप कान से कुछ सुन रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं और वो एक सिस्टमैटिक नहीं होता है क्योंकि वो आप जब सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो इट कैन नॉट बी सिस्टमैटिक क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन जैसे मिल रहा है आप वैसे ही उसको शॉर्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट वेरी सिस्टमैटिक नोट मेकिंग ऑन द अदर हैंड इज वेरी वेरी सिस्टमैटिक क्योंकि आपके सामने जो मेन टेक्स्ट रहता है वो रिटन फॉर्म में रहता है you have something printed in front of you and you read that and you prepare or you condense that आप उसको छोटा करके बनाते हैं तो note making and note taking are not exactly same note making is a very very systematic process while note taking is not that note taking is based on listening नोट मेकिंग के बहुत सारे पर्पसेस हैं लाइक फॉर इमीडिएट क्विक रिकॉल आपने नोट मेकिंग किया तो आप इमीडिएटली उसको रिकॉल कर सकते हैं या आपके पास रेफरेंस इमीडिएटली रहेगा तुरंत आप उसको रेफरेंस कर पाएंगे आप नोट मेकिंग कर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे इजीली you can also have your thinking critical thinking you can organize the ideas and information in a very systematic manner you can also extract the main idea जो main point है वो टेक्स्ट से derive करेंगे आप एग्जाम से पहले अच्छा से रिवीजन कर पाएंगे you can easily memorize the things and remember it for a longer time better retention you can plan your speech lecture etc and discussion etc based on the notes you can also make presentations and you can summarize the reading text so these are some of the purpose for making note making or taking now हम एक पैसेज आपके सामने कर रहे हैं उस पैसेज एक एग्जांपल से आपको समझ में इजीली आ जाएगा I am going to read one passage and based on this passage we'll see कि इस passage से हम note कैसे बनाएंगे ठीक है so I'm reading this passage to you this is a passage about taking up a MOOC course massive open online course I'm reading this passage to you it can sometimes be difficult to find time for professional development with the busy pace of many offices and the constant flow of interruptions using the lockdown time during the spread of coronavirus time to invest in your human capital can allow you to return to the office with new skills and knowledge. There are some ideas that you can pitch to your manager as work from home option. MOOCs or massive open online courses are quality courses offered by the partnership with offered in partnership with universities. दो प्रिपरेशन है इसको हटाना पड़ेगा offered in partnership with universities the course content is delivered through recordings taught by actual professors and typically reviewed by an expert panel for quality control let me allow me to wear specs courses that exist on a vast range of topics like accounting and finance economics computer science big data etc some courses often even offer professional certifications or you can work towards degrees. Use Google Scholar form to read some of the latest publication in your field. Sometimes it can be hard to keep up
on the latest research with the pace of day-to-day demands. So this is a good opportunity to see what new research has been published. Who knows what insights you could find. You can make this activity more effective and generate proof of work by taking notes and making a summary to share your with your manager and colleagues. There are always great non-fiction books books being published on government, leadership, policy issues, and similar topics. You could find a book relevant to your past, position and read it. Read as an ebook or audiobook. Just like when you read academic literature, you could create a summary of your key learning. Or for bonus points, you could even organize a remote book club with your colleagues and read books together. The internet is full of content about every possible field, and many people have created great podcasts or ideas to share their knowledge and insights. Taking notes can help you remember the content, and these can be shared with your manager and colleagues. Official bilingualism is an important principle of our country and of the federal government. Even if your position does not require bilingualism, learning your second official language can help you with your career and enable you to communicate with your colleagues and their language of preference. So this is a source from where this text is taken. So this was a passage, and based on the passage, we are going to make notes. First thing, आप जब इस पैसेज को पढ़ रहे हैं तो आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज यू कैन आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ग्लोबल कंप्रीहेंशन. ग्लोबल कंप्रीहेंशन का मतलब होता है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपका क्या हुआ. तो ग्लोबल कंप्रीहेंशन से एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट द होल पैसेज इज अबाउट. ये पैसेज किस चीज के बारे में है. आंसर मोस्टली आएगा दिस पैसेज अबाउट प्रोफेशनल ग्रोथ, जो कि पहले लाइन में ही लिखा हुआ है. फर्स्ट लाइन में ही देखिएगा प्रोफेशनल ग्रोथ जैसा कुछ हो गया. ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना. देखिए पहले लाइन का ही कीवर्ड है. तो दिस पैसेज अबाउट प्रोफेशनल ग्रोथ ये आपको मिल जाएगा, या प्रोफेशनल डेवलपमेंट. हमने वहीं से कीवर्ड ले लिया प्रोफेशनल डेवलपमेंट. अभी सेकंड, यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज. ये पैसेज कितना लंबा है, इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं, राइटर ने इस थीम को कैसे डेवलप किया है. सो हाउ डज द राइटर डेवलप द थीम ऑफ द पैसेज. this can be answered like the first paragraph includes the topic professional development. पहला पैराग्राफ में टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया. नेक्स्ट पैराग्राफ में 5 एक्टिविटीज, नेक्स्ट 5 पैराग्राफ में 5 एक्टिविटीज डिस्कस हुए हैं. सेकंड पैराग्राफ में मूक के बारे में बात किया गया. थर्ड पैराग्राफ में गूगल स्कॉलर की बात हुई. फोर्थ पैराग्राफ में बुक रीडिंग की बात हुई. फिफ्थ पैराग्राफ में इंटरनेट से कुछ पॉडकास्ट पढ़ने की बात हुई. और सिक्स्थ पैराग्राफ में बाइलिंगुअल होने की, 2 लैंग्वेज सीखने की बात हुई. तो ये आपका मेजर स्ट्रक्चर है. ये आपको हेल्प करेगा नोट बनाने में काफी अच्छा से. थर्ड में आप देखिए एनालाइज एंड सेलेक्ट इंफॉर्मेशन. अब इसमें से कौन से आइडिया को हमें लेना है और कौन से आइडिया को नहीं लेना है. व्हाट आर द आइडियाज टू बी टेकन, व्हाट आर द आइडियाज नॉट टू बी टेकन, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो यू हैव टू थिंक ऑफ द मेन आइडियाज एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. सो इसमें मेन आइडियाज क्या है और उसके सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है. इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए बहुत अच्छा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टास्क दे सकते हैं कि आप सारे बच्चों को बताइए कि चलो ये 5 पैसेज है, हमें स्ट्रक्चर पता चल गया. इसमें पूरे 6 पैराग्राफ हैं. 6 में से पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, बाकी 5 पैराग्राफ में एक एक टॉपिक पे प्रोफेशनल ग्रोथ करने के लिए बोला है. तो आप बोर्ड पे जाइए और बोर्ड पे 5 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 5 कॉलम बना लीजिए. कॉलम समझ रहे हैं मैं आ रहा है. बोर्ड पे ऊपर से नीचे तक 5 लाइन आप खींच दीजिए. ठीक है, 5 लाइन खींच दिए तो आपका पूरा बोर्ड 5 भाग में बट गया. ऊपर में आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट लिख दीजिए और नीचे में देखिए कि पहला पैराग्राफ का मेजर आइडिया क्या, सेकंड पैराग्राफ का मेजर आइडिया क्या है. तो मूक्स है, मैसिव ऑनलाइन कोर्स है. तो ये सबसे ऊपर में लिख दीजिए. सेकंड क्या है, रीडिंग बुक्स और जर्नल्स, रीडिंग गूगल स्कॉलर है. तो दूसरा में आप गूगल स्कॉलर अभी तक के लिख दीजिए. तीसरा में अब क्या लिखा है, नॉन फिक्शन रीडिंग है, ये लिख दीजिए. चौथे में क्या है, इंटरनेट रिसोर्सेस लिख दीजिए. 5वां में क्या है, बाइलिंगुअल लिख दीजिए. अब आपको लगभग मेन आइडिया जो है 5 पैराग्राफ के मिल गए हैं. अब आप देखिए कि क्या उसी पैराग्राफ में सारे उसके सपोर्टिंग डिटेल्स हैं. जैसे अगर कोई मूक कोर्स करने के लिए बोला है तो मूक कोर्स कैसे करें, कैसे सर्टिफिकेट जनरेट हो, कैसे उसके लेसन डिलीवरी हो, क्या सिर्फ इसी पैराग्राफ में है या कहीं और भी है. जनरली इस पैसेज में क्या है कि आइडिया एक ही जगह है, उसी पैराग्राफ में है. तो उससे रिलेटेड जितने भी
आइडिया हैं, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जैसे कि रिकॉर्डेड लेसन्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स होते हैं, जैसे कि टॉपिक्स हैं अकाउंटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, इनके सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। तो जो भी इस मेन मूक से रिलेटेड जो भी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं वो पहले कॉलम में लिखते चले जाइए, या दूसरे कॉलम जब जहां भी आपने मूक लिखा हुआ है, अगले कॉलम में जैसे गूगल स्कॉलर आपने दिया तो इससे रिलेटेड जितने भी सपोर्टिंग डिटेल्स है वो लिखते चले जाइए। तो आपके बोर्ड पे एक तरह से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रहा है बच्चों के द्वारा, और ये काम बच्चों से करवाइए। तो कोई पैसेज दे दीजिए, बोलिए हाँ मूक से रिलेटेड जितना भी सपोर्टिंग डिटेल मिल रहा है बताओ, और आप उसको रिफ्रेज करके लिखते जाइए बोर्ड पे। So this way you can ask them to find main ideas and supporting details. से for example मैंने यहाँ देखा है टेकिंग मूक से रिलेटेड जो सपोर्टिंग डिटेल्स है वो है क्वालिटी कोर्सेज। टेकिंग मूक पहला आइडिया इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स आर क्वालिटी कोर्सेज, यूनिवर्सिटी रिकॉर्डिंग, एक्चुअल प्रोफेसर्स, रिव्यूड बाय एक्सपर्ट्स, टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, बिग डेटा, प्रोफेशनल ग्रोथ। जितना हमारा मेन पैसेज था उसको हमने उसको 1/3 में यहाँ डाल दिया, मेन कीवर्ड्स को डाल दिया। आप ये बात याद रखिएगा कि जो मेन आइडिया और सपोर्टिंग डिटेल हैं उसमें हम ग्रामर के आइटम्स, ग्रामर के स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स एटसेट्रा को नहीं रखते हैं। उसके बिना जो मेन वर्ड है जिसका मीनिंग आ रहा है, जिसको कहीं भी रख देंगे तो मीनिंग देगा, वैसे वर्ड को कंटेंट वर्ड बोलते हैं, उस वर्ड्स को ही डालते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स को नहीं डालते हैं। सिमिलरली रीडिंग रिसर्च पेपर है, उसके जो सेकंड था गूगल स्कॉलर वाला, उसको रिफ्रेज हमने कर दिया रीडिंग रिसर्च पेपर्स। उसमें लेटेस्ट उसके सपोर्टिंग डिटेल्स है, लेटेस्ट रिसर्च, डे टू डे डिमांड, प्रूफ ऑफ द वर्क, क्या है नोट मेकिंग और समराइजिंग। सिमिलरली आप देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं, 3 कॉलम बना दिया। 5 मैंने बताया था, 3 मैंने इधर ऐसे करके दिखाया, 2 ऐसे करके दिखाया, 2 ऐसे रनिंग में दिखाया, 3 को कॉलम करके दिखाया। जैसे रीडिंग बुक्स आपका 3rd पैराग्राफ है, इसमें क्या है नॉन फिक्शन, वो टॉपिक्स है गवर्नमेंट लीडरशिप पॉलिसी पे हो, ई बुक के फॉर्म में चलेगा, ऑडियो बुक के फॉर्म में चलेगा, समरी ऑफ लर्निंग आपको करना है, रिमोट बुक क्लब बनाना, ये सपोर्टिंग डिटेल्स है रीडिंग बुक से रिलेटेड। सिमिलरली इंटरनेट कंटेंट से रिलेटेड जो है सपोर्टिंग डिटेल्स है ऑनलाइन ऑडियो, पॉडकास्ट, वीडियो, टेक नोट्स, शेयर विद ऑफिस पीपल, ये सब इसके सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। लर्निंग अनदर लैंग्वेज में है बाइलिंगुअलिज्म, पॉलिसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, ईज ऑफ कम्युनिकेशन, हेल्प विथ योर करियर, ये सब इसके सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। तो आपके जितने भी जो मेजर आइडियाज हैं उस पैराग्राफ उस पैसेज के, उसके मेजर आइडियाज को आप बोर्ड पे रख दीजिए, लिख दीजिए, और उसके सपोर्टिंग डिटेल्स बच्चों के हेल्प से कॉलम में फिल करा दीजिए। अब आपका नेक्स्ट वर्क आता है उस जो आपने अभी तक क्या किया, आपने ग्लोबल कंप्रिहेंशन करके उसका टाइटल चुन लिया, आपने मेन आइडियाज 5-6 जो भी मिले उसको फाइंड आउट कर लिया, उसके सपोर्टिंग डिटेल्स फाइंड आउट कर लिए। अब आपको जो सपोर्टिंग डिटेल्स है उसको कॉन्डेंस करना है, उसको छोटा करना है, क्योंकि नोट जो होता है वो बड़ा नहीं होता है, उसको जितना छोटा से छोटा कॉम्पैक्ट हो सकता है। तो जितने भी रिपीटेड वर्ड्स हैं या स्ट्रक्चर वर्ड्स हैं, जैसे आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस, इस सब को हटा देंगे। जो मेन आइडियाज हमने जो जो किया है, सपोर्टिंग डिटेल्स किए हैं, उसमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन, उस सबको, हिज हर वगैरह उस सबको हटा देंगे, और उसको काफी छोटा लिखना है। से फॉर एग्जांपल छोटा करने के लिए बच्चों को बहुत कुछ आता है आजकल, दे नो फॉर एग्जांपल लर्न, LRN कर सकते हैं। फॉर्मल, इसमें क्या हमने वॉवेल्स को ड्रॉप कर दिया वर्ड के स्पेलिंग से, फॉर्मल FRML, इसमें वॉवेल ड्रॉप्ड है। स्पीड, SPD, स्पीड हो गया। शॉर्ट एंड SHRT HND, मैंने वॉवेल्स को रिमूव कर दिए, वॉवेल्स को रिमूव कर दिए, छोटा हो जाएगा। या कॉमन शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लीजिए, एंड है, एट है, एट द रेट है, एटसेट्रा है, दैट इज है, बाय द वे है, या बिटवीन है। नंबर्स को आप यूज करिए वर्ड्स की जगह पे 2010 या 2020 या 2022 2010 के लिए। लेटर्स फॉर वर्ड, फॉर एग्जांपल C से SEE स्पेलिंग आ सकता है, U से YOU स्पेलिंग आ सकता है। तो आप लेटर्स का यूज कर रहे हैं वर्ड्स के लिए, या लेटर और नंबर को कंबाइन कर रहे हैं, लेटर, देख रहे हैं ये SMS का लैंग्वेज है, बच्चों को पता है। या कॉमन एब्रिविएशन या कॉमन एक्रोनिम, USA, UNO, यूनेस्को, SAC, ये सब यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो मेन वर्ड्स हैं
कौन से वर्ड को शॉर्ट करेंगे? वैसे वर्ड को शॉर्ट करेंगे जो या तो बहुत बड़ा है, लेंथ ऑफ द वर्ड जो बहुत बड़ा है, जैसे कम्युनिकेशन है तो COMN कर देंगे, या कंजंक्शन है CONS कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो आप जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं या जो बार बार आए हैं वर्ड है, एक तो पहला हो गया लेंथ ऑफ द वर्ड जो सबसे बड़ा वर्ड है, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड वो वर्ड जो बार बार रिपीट हुआ है, जैसे उस पैसेज में प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत बार आया है या प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत बार आया है, तो उसको PD लिख देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो अब हमें PD से प्रोफेशनल डेवलपमेंट हर जगह आ जाएगा। तो वैसे वर्ड जो बार बार रिपीट हुए हैं या नोट्स वर्ड उसमें बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जो वर्ड बार बार रिपीट हुए हैं या जो वर्ड बहुत बड़े हैं उनको हम शॉर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया कंडेंसिंग द इंफॉर्मेशन। अब एक टाइटल वगैरह आप सुटेबल टाइटल हमने सर्च कर लिया, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो गया था या प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन ये हो गया था। हेडिंग सब हेडिंग हमें मिल गया और शॉर्ट फॉर्म हमें मिल गया। अब हम नोट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में देंगे। यहां तक समझ में आ गया? So far so good? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Let me come to the next point now. How to put them into Yes, sir. the proper format. So there are 2-3 formats. Don't teach them just one format, 2-3 formats. First is outline linear method. इसमें क्या है कि सबसे पहले आप ऊपर में टाइटल डालिए, जो कि यहाँ मैंने डाल दिया। उसके बाद आप मेन पॉइंट्स और सपोर्टिंग डिटेल्स को अरेंज करते जाइए। मेन पॉइंट्स को आप एक नंबर से इंडिकेट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 मेन पॉइंट्स हैं, और सपोर्टिंग डिटेल्स को मैंने रोमन में डाला है 1 2 3 4 5, और सब सपोर्टिंग डिटेल जो है उसको मैंने नंबर में उसको मैंने लेटर्स में डाला ABCD। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग मूक, ये मेन पॉइंट है, इसको मैंने कैपिटल लेटर से शुरू किया और लिखा। अब मूक के रिलेटेड सपोर्टिंग डिटेल्स हैं क्वालिटी कोर्सेज बाय यूनी हो गया है, यूनी हो गया, नीचे में देखिए यहां मैंने उसको क्लियर कर दिया, यूनी मींस यूनिवर्सिटी, क्वालिटी कोर्सेज बाय यूनिवर्सिटी, रिकॉर्डेड लेसन्स बाय एक्चुअल प्रोफेसर्स, प्रोफेसर कर दिया, रिव्यूड बाय एक्सपर्ट्स, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। अब इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं, कौन कौन से टॉपिक्स या सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, तो मैंने फोर्थ सपोर्टिंग डिटेल्स को सब सपोर्टिंग डिटेल से सपोर्ट किया। जैसे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बिग डेटा। CS को मैंने एक्सप्लेन किया, CS यहां लिखा, यहां मैंने लिख दिया इसको कंप्यूटर साइंस। और PC को मैंने यहां किया, PC मींस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, यानी बच्चों को प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी तरह से दूसरा मेन आइडिया है रीडिंग रिसर्च पेपर, उसका सपोर्टिंग डिटेल है लेटेस्ट रिसर्च, करंट डिमांड्स, वर्क प्रूफ में क्या है नोट टेकिंग और समराइजिंग। तीसरा मेन पॉइंट है रीडिंग बुक्स, इसमें नॉन फिक्शन है जो कि गवर्नमेंट रीडरशिप या पॉलिसी पे हो, ई बुक्स हो सकते हैं, ऑडियो बुक्स हो सकते हैं, और इसका वर्क का प्रूफ होगा सम, देखिए रिपीट हो रहा है, सम इधर भी था, समरी हो गया, और रिमोट बुक क्लब हो गया। उसी तरह से चौथा मेन पॉइंट है, फोर्थ मेन पॉइंट इज यूजिंग इंटरनेट कंटेंट, सपोर्टिंग डिटेल्स आर ऑनलाइन ऑडियोज, वीडियोज, पॉडकास्ट एंड वर्क प्रूफ इसका है नोट टेकिंग शेयर विथ कलीग्स। पांचवा मेन पॉइंट है लर्निंग अनदर लैंग्वेज, इसके सपोर्टिंग डिटेल्स हैं बाइलिंगुअलिज्म पॉलिसी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, सेकेंड लैंग्वेज, इजी कम्युनिकेशन एंड करियर ग्रोथ। और जितने भी हमने शॉर्ट फॉर्म्स को यूज किए हैं उसको की यहां में डालेंगे, की टू शॉर्ट फॉर्म्स, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपको आउटलाइन लीनियर मेथड के थ्रू नोट्स को हमने कर दिया। आप में इसमें लाइन का सही प्लेसिंग बहुत जरूरी है, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जैसे हमने 1 2 3 4 5 लिखा, यहाँ हमने यहाँ बुलेटिन का यूज किया, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये ऊपर में जो रहता है बुलेटिन, मैंने इसका यूज किया है। तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप ऐसा करो, जो मेन आपका शीट होता है उस शीट में पहले एक लाइन खींच दो पेंसिल से, उस लाइन पे सब मेन पॉइंट्स वहां से शुरू करना, थोड़ा छोड़ के एक दूसरा लाइन खींच दो, वहां से सारे सपोर्टिंग डिटेल्स लिखना, थोड़ा लाइन छोड़ के एक और लाइन खींच दो, वहां से अगर कोई सपोर्टिंग डिटेल्स का फर्दर सपोर्टिंग डिटेल आया उसको वहां लिखना। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को सीक्वेंसिंग आ जाएगा, उनका आइडिया एकदम सिस्टमैटिक वेल ऑर्गेनाइज दिखेगा और इधर उधर नहीं होगा। और बाद में जब वो पूरा नोट्स बना ले तो आप उन्हें बोलिए कि आप वो जो आपने लाइन खींचा था पेंसिल से उसको इरेज कर दो, उसको डिलीट कर दो, तो आपका नोट काफी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड और सिस्टमैटिक लगेगा। इसमें से कोई भी पॉइंट को
मार्जिन के अंदर जहां की क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर वगैरह लिखते हैं वहां नहीं लिखना है। दूसरा एक फॉर्मेट है माइंड मैप या स्पाइडर डायग्राम या ब्रेनस्टॉर्मिंग चार्ट मेथड है। ये देखिए यहाँ उसको सिमिलर यहाँ यूज किया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आया। यहाँ मैंने मेन हेडिंग को लिखा प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उसके 5 सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। एक यहाँ टेकिंग मूक, दूसरा रिसर्च पेपर, तीसरा रीडिंग बुक, चौथा यूजिंग इंटरनेट कंटेंट और 5वां लर्निंग अनदर लैंग्वेज। जो ऊपर में था सेम है, यहाँ मैंने बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ स्पाइडर की तरह डायग्राम यहाँ से निकल गया, उसके अंदर सारे मेन आइडिया सपोर्टिंग डिटेल्स को हमने अरेंज कर दिया। और तीसरा है कॉर्नल्स 3 कॉलम मेथड। ये कॉर्नल एक प्रोफेसर है वॉल्टर पाउंक, उन्होंने वो कॉर्नल यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने इसको 1940s में क्लासरूम नोट्स के लिए डिवाइड किया था। इसमें एक व्हाइट पेज जो होता है या टिपिकल पेज, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला ऊपर नीचे से एक लाइन पहले ड्रॉ कर देंगे 2 3 ऊपर से 2/3 करके नीचे एक लाइन पूरा ड्रॉ कर देंगे। ये देख रहे हैं आपको, ये 2 पेज में चला गया, एक पेज में रहता तो अच्छा दिखता। मैं इसको एक पेज में भी करके देख रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको यहाँ आया ना, ये एक व्हाइट पेज अगर है तो इस व्हाइट पेज में आप देखिए बॉटम पहले ये एक लाइन खींच दिया, ये लाइन खींच दिया तो 1/3 जो बॉटम वाला है वो समरी के लिए हो गया, और बाकी जो ऊपर वाला स्पेस बन गया उसको 1/3 को लेफ्ट में छोड़ दीजिए। ये ऊपर वाला हो गया लेफ्ट वाला कॉर्नर, और ये हो गया नोट्स वाला कॉर्नर। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें आप मेन क्वेश्चन, रिव्यू, जो मेन पॉइंट्स हैं वो इधर लिखेंगे। ये मेन पॉइंट्स इधर आएगा, इधर सपोर्टिंग डिटेल्स आएगा। इधर मेन पॉइंट आपने लिखा, उसका सपोर्टिंग डिटेल सामने इधर लिखाएंगे। इधर मेन पॉइंट 2 लिखा, सपोर्टिंग डिटेल इधर लिखेंगे, और यहाँ पूरे पेज का समरी लिखेंगे। So this way, this is very useful method of having interesting interaction in the class or taking notes in the class. इसमें समरी का भी एक रोल है। तो समरी कैसे लिखते हैं ये भी देखिए, समराइजिंग एक जनरली पूछता है। समरी में क्या होता है कि आपने जो नोट्स बनाया उसी नोट्स को देख के समरी बनाते हैं। आपको समरी के लिए मेन टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है, बल्कि आपने नोट्स बनाया, नोट मेकिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है समरी राइटिंग। इसमें आपको करना क्या है कि नोट्स जो है उसमें से ग्रामर हटा दिया था, जैसे हमने आपको प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस हटवा दिए थे, मेन वर्ड्स रखा था, जो कंटेंट वर्ड्स है उसको बच्चे अपने लैंग्वेज में कोशिश करके अपने लैंग्वेज में उसको सेंटेंस में पुट कर देंगे। और ये समरी जो है वो काफी कम होगा, 1/3 होगा मेन पैसेज का, और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होगा। इसमें शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज नहीं करेंगे, तो जो शॉर्ट किया उसको फिर से बड़ा करना पड़ेगा। ग्रामर का मिस्टेक्स नहीं होगा। कंप्लीट सेंटेंस आप टेक्स्ट से कॉपी नहीं करेंगे, जो आपको मेन टेक्स्ट है उससे कंप्लीट सेंटेंस कॉपी नहीं करेंगे, और आपको अपने वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज करना है, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करना है। आपका जो नोट्स था उसी को देख के हमने समरी इसको लिख दिया है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन इज वेरी नेसेसरी फॉर एम्प्लॉइज, दे कैन लर्न न्यू स्किल्स व्हाइल वर्किंग फ्रॉम होम। देखने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये वर्किंग फ्रॉम होम वगैरह नहीं था। दे कैन टेक न्यू कोर्सेज थ्रू MOOC and learn and earn a professional certificate. Reading latest research paper will update them with the latest development in the field. Reading non-fiction books using remote book club related to their fields may be a good source of learning. They can listen to podcasts, audiobooks, and online audios to learn new skills. Watching videos related to their fields will be even better. Learning another official language will help them easily communicate with a colleague who knows the language. They can make notes and summarize their learning from the above sources with their managers and share them with their managers and colleagues as evidence of their learning. So ये पैसेज से हम पैसेज के अंडरस्टैंडिंग के आधार पर नोट्स जो हमने बनाया उसी के आधार पे हमने अपने वर्ड्स में उस पैसेज को लिख दिया। तो ये जो समरी है कॉर्नल के 3 मेथड में यहाँ आएगा। तो ये बेसिकली आपका नोट्स है, जो नोट्स में नोट मेकिंग में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको कैसे टीच करें, कैसे बोर्ड का यूज करें, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कैसे बच्चों को समरी राइटिंग के लिए मोटिवेट करें, कैसे उनको स्ट्रक्चर में पुट करने के लिए बोलें, क्या फॉर्मेट यूज करें। तो बोथ मैंने कंटेंट और पेडागोजी दोनों इनपुट आपको दिए। तो मुझे लग रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और आप बच्चों को इसका यूज करके उनका जो क्वेश्चन है, जो नोट मेकिंग समराइजिंग, उसको करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। I hope it was understood. If you have any question, you can ask.